Hello everyone. In today's class, firstly we'll do 5 questions from the previous slide. I mean from the previous lecture. जो भी हमने previous lecture किए थे उसमें हमने 30 idioms and phrases जो हैं वो हमने समझे थे. उनमें से we'll do 5 questions and afterwards we'll move forward and we'll learn the other 30 idioms and phrases. So our first question is bad blood. So options are A, war, B, bitter relations, ill feelings, and C is threatening attitude, and D is in an infected state of pain. So what do you think, what is the right answer to the idiom bad blood? Yes, bitter relations or ill feelings is the right answer. Okay, so our next idiom is right now, your name is mud. Okay, your name is mud. So the options are A, delete, B, praise, C, bad reputation, and D, slice into small pieces. ओके सो हमने इसको कैसे याद रखा था योर नेम इज मड को, कि अगर कोई योर नेम इज मड क्या होता है, मड होता है गंदा. ओके और गंदे को हमने कैसे याद रखा था, बैड से. ओके मड होता है गंदा और हमने गंदे को कैसे याद रखा था, बैड से. सो योर नेम इज मड, इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, बैड रेपुटेशन. ओके so next idiom for today's class is question number 3, which is take a back seat. Okay, take a back seat. Options are given less importance, B is acknowledge defeat, and C is get success, and D is concentrate more. Okay, so हमने इसको कैसे याद रखा था, टेक अ बैक सीट को हमने इसको याद रखा था कि अगर जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है वो पीछे जाके बैठ जाता है. ठीक है, सो हमने इस तरीके से इसको याद रखा था. सो व्हाट इज द आंसर टू द इडियम टेक अ बैक सीट? इट मीन्स गिवन लेस इंपॉर्टेंस. सो गिवन लेस इंपॉर्टेंस इज द राइट आंसर. Our next idiom is for today's class, which is question number 4, zigged before you zagged. Zigged before you zagged. You might have remembered the picture जो हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि एक लड़की है वो खाना बना रही है और बिल्कुल मेस क्रिएट कर रही है. ओके सो zigged before you zagged को हमने कैसे याद रखा था, एक लड़की है खाना बना रही है, मेस क्रिएट कर रही है, सब कुछ रॉन्ग ऑर्डर में कर रही है. सो योर ऑप्शंस आर टू मेक प्रोग्रेस, things done in wrong order, C is to flourish, and D is happen fast and instantaneously. Okay, so the right answer is things done in wrong order. Okay, things done in wrong order. Oh, okay. So last idiom for today's classes, I mean if I talk about the question session, so question number 5 है हमारे पास, you are a toast. You are a toast. So our options are an unreliable person, one who causes damage, C is you can't change who you are, and D is to be in deep trouble. Okay, D is to be in deep trouble. So right answer is to be in deep trouble. Hello everyone. So in today's class we will discuss next 30 idioms and phrases. So our first idiom and phrase for today's class is 31, that is you can't hide elephants in mouse holes. Okay, so you can't hide elephants in mouse holes. जैसे हम यहाँ पे एक एलिफेंट को देख सकते हैं. ओके जैसे ये एलिफेंट है, हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं कि ये जो एलिफेंट है हम इसको माउस के होल में हाइड नहीं कर सकते. ओके सो हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं इसके मीनिंग को. इसका मीनिंग क्या होगा, सम इश्यूज और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस कांट बी हिडन. अगर हमारी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस हैं, समटाइम्स दे कैन नॉट बी हिडन, हम उसे नहीं छुपा सकते. ओके सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस इडियम, यू कांट हाइड एलिफेंट्स इन माउस होल्स. ओके सो व्हाट विल बी द यूसेज? द यूसेज इज यू कांट हाइड एलिफेंट्स इन माउस होल, बी बोल्ड टू फेस एंड डील विद दीज प्रॉब्लम्स. क्या है इसका मीनिंग, कि आप अपने इश्यूज को या अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने चैलेंजेस को नहीं छुपा सकते हो. आपको क्या करना है, आपको बोल्ड रहना है उसको फेस करने के लिए, एंड यू हैव टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स. ओके Okay, so our next idiom is 32, that is you can't have your cake and eat it. You can't have your cake and eat it. जैसे हम इस एग्जामिन कर सकते हैं इसका मीनिंग यहाँ पर. जैसे एक बच्चा है वो यहाँ पे पतला भी होना चाहता है, ओके डाइटिंग भी करना चाहता है एंड वेट भी कम करना चाहता है, बट वो अपने जंक फूड पे गिव अप भी नहीं कर रहा है.
ओके सो इसका मीनिंग को हम एग्जामिन कर सकते हैं. यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट. सो व्हाट विल बी द मीनिंग? मीनिंग इसका होगा यू कांट हैव थिंग्स बोथ वेज. आप जैसा चाहते हो दोनों चीजें आपके लाइफ में हो, यू कैन नॉट हैव दैट. ओके सो यूसेज है इसका. वील अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ द इडियम विद द हेल्प ऑफ अ डायलॉग. सो व्हाट इज दैट? फरीदा, आई वांट टू शेड सम वेट बट आई एम नॉट विलिंग टू गिव अप ऑन जंक फूड. फरीदा क्या बोल रही है कि मुझे अपने वेट को कम करना है बट मैं अपने जंक फूड नहीं गिव अप कर सकती. सो ऋषभ बोल रहा है यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट. आप चाहते हो आप यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट. इसका मीनिंग है आप चाहते हो आप दोनों चीजें करो. यू कैन नॉट हैव बोथ द थिंग्स. ओके so next idiom is you can't have cake and topping too. okay so you cannot have cake and the topping too. जैसे हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं कि there is someone और वो यहाँ पे एक जो ओल्ड मैन है वो अपने पैसों को छुपा रहा है. ठीक है और ये बार बार उससे पैसे मांग रहे हैं. ठीक है सो इसका मीनिंग हम यहाँ से एग्जामिन कर सकते हैं. यू कांट हैव एवरीथिंग द वे यू वांटेड. इट मीन्स ये चाहता है इसको पैसे मिल जाए बट ये इसको नहीं दे रहे. ठीक है सो इसका मीनिंग है आप जैसा चाहते हो आपकी लाइफ में आपका वैसा हो, वैसा ऐसा नहीं होता है. ओके सो यू कांट हैव केक एंड टॉपिंग टू. सो व्हाट विल बी द यूसेज? यूसेज इज बी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एक्स हस्बैंड. आस्किंग फॉर सम मोर कैश इज सिंपली नॉट अ गुड आइडिया. सो यू कांट हैव केक एंड द टॉपिंग टू. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा जैसा आप चाहते हो. सो यहाँ पे इसके यूसेज से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इडियम. सो बी कंटेंट विद व्हाटएवर यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एक्स हस्बैंड. आपको जो भी अपने एक्स हस्बैंड से मिला है उससे कंटेंट रहो, ठीक रहो, सेटिस्फाइड रहो. आप ज्यादा कैश यहाँ पे मांग रहे हो ये सिंपली गुड आइडिया नहीं है. सो यू कांट हैव केक एंड द टॉपिंग टू. आपको केक भी चाहिए टॉपिंग भी चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके Now our next idiom is 34. That is to hold all the cards. Okay, to hold all the cards. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? To have a very strong advantage. To have a very strong advantage. To hold all the cards. Okay, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट जो है कुछ डिस्कस कर रही है किसी चीज के बारे में. So let's understand this particular idiom with the help of the usage. Management holds all the cards when it comes to the negotiations over job cuts. जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है जब उसने नेगोशिएशंस करनी होती है जॉब कट्स के लिए. ठीक है टू होल्ड ऑल द कार्ड्स मीन्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज. नेक्स्ट इज यू कैन से दैट अगेन. ओके सो यू कैन से दैट अगेन. इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं कि हम एग्री हैं किसी चीज के लिए. ओके सो यू कैन से दैट अगेन. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कंप्लीटली अग्री विद व्हाट समवन हैज सेड. किसी ने कुछ बोल दिया और हम बिल्कुल अग्री हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला आई हेट गोइंग बैक टू वर्क ऑन मंडेज, कि मुझे वापस मंडे को काम करना नहीं अच्छा लगता है. बी ने बोला यू कैन से दैट अगेन. इट मीन्स बी जो है कंप्लीटली अग्री है. ओके So next idiom is you can choose your friends but you can't choose your family. आप अपने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हो बट आप अपनी फैमिली को चूज नहीं कर सकते हो. ओके सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव वेयर यू हैव नो चॉइस. आपको बेस्ट वहां पे करना है जहां पे आपकी कोई भी चॉइस नहीं है. ओके इन दैट केस वी कैन यूज दिस इडियम. यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर फैमिली. यूसेज इज I may not get along with my siblings, but hey, you can choose your friends, but you can't choose your family. क्या बोल रहा है कि मैं अपने सिबलिंग से जाना मुझे पसंद नहीं है. फिर दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं, you can choose your friends, but you can't choose your family. It means आप जो भी है अब ये आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको वहीं पे जाके बेस्ट एक्सपीरियंस करना है. Okay, so next idiom is you can catch more flies with honey than with vinegar. Okay, so you can catch more flies with honey than with vinegar. So यहाँ से हम इसको गेस भी कर सकते हैं. जैसे फ्लाइज हैं, ऑब्वियसली फ्लाइज कहाँ पे जाएंगी? वहां पे जाएंगे जहाँ पे मीठा होगा, जहाँ पे हनी होगा. और यहाँ पे हनी क्या सिग्निफाई कर रहा है? द स्वीट. ओके द स्वीटनेस, द पोलाइटनेस, ऑल सच थिंग्स. और विनेगर क्या बोल रहा है? विनेगर बोल रहा है समथिंग विच इज नॉट गुड. ओके जो गुड नहीं है. ओके और जो बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट है काइंड ऑफ, जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया. ओके सो यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैन विद विनेगर. इट मीन्स यू कैन विन ओवर पीपल मोर इजीली बाय बीइंग पोलाइट एंड काइंड और बीइंग जस्ट नाइस टू अदर्स. अगर आप चाहते हो आप दूसरों का दिल जीतें तो आपको बहुत पोलाइट रहना होगा, काइंड रहना होगा और आपको नाइस होना होगा दूसरों के साथ. ओके सो जैसे हम यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं एक जो है बॉस जो एडवाइस कर रहा है किसी को कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे डील करना है. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इडियम विद द हेल्प ऑफ द यूज.
usage. The boss advised Riya to just be polite and extra courteous while talking to clients. You can catch more flies with honey than with vinegar. Okay, boss advice करे रिया को कि आपको ज्यादा पोलाइट रहना है, ज्यादा एक्स्ट्रा कोटियस रहना है जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके पास बार बार आएंगे. ओके, सो क्लाइंट्स जो है बार बार आएंगे, हम उनसे डीलिंग हमारी अच्छी हो जाएगी. इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैन विद विनेगर. ओके, so next idiom is you are what you eat. Okay, so you are what you eat. In simple terms, good food, good mood. Okay, so इसका meaning है it is important to eat good food in order to be healthy and fit. तो बहुत ज़्यादा important है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा important है अगर हमें healthy रहना है और fit रहना है. Okay, so what is the usage? Usage is I'm feeling more energetic now that I've started eating more salad. At the end of the day, you are what you eat. क्या बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा energetic हो गया हूँ क्योंकि मैंने सैलेड ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड किया है. सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर व्हाट यू ईट. ओके, इवन फॉर द माइंड एज वेल, अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव थिंग्स ला रहे हैं ऑब्वियसली विल बिकम अ पॉजिटिव पर्सन. ओके, सो नेक्स्ट 39th idiom is yesterday's man और yesterday's woman. yesterday's का मीनिंग क्या होता है? सिंपल टर्म्स कल. ओके, जो हो चुका है कल, दैट इज कॉल्ड yesterday's. ओके, सो yesterday's man यहाँ पे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि एक देयर इज अ पर्सन, वो यहाँ पे खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है उसका करियर खत्म हो गया. इस पिक्चर से अगर हम एग्जामिन करें, सो yesterday's man और yesterday's women का मीनिंग क्या है? इट मीन्स someone, especially a politician or celebrity whose career is over. कोई ऐसा बंदा, कोई politician है या celebrity है जिसका करियर खत्म हो गया है. In that case we can use the idiom yesterday's man or yesterday's women. Okay, so usage क्या है इसका? Bob is never going to give up his cushy job. He is yesterday's man and his next career move is retirement. जो Bob है वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो yesterday's man है, उसका वैसे भी करियर तो खत्म होने वाला है. उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा करियर में? रिटायरमेंट. ओके, सो yesterday's man और yesterday's women का मीनिंग क्या है? एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा बंदा, स्पेशली हम उनके लिए यूज करते हैं ये जिनका करियर खत्म हो गया. सो इन दैट केस वी कैन यूज ही इज yesterday's man. ओके, नेक्स्ट इज yeoman सर्विस. yeoman सर्विस का मीनिंग क्या होता है? हेल्पफुल, यूजफुल और एफिशिएंट सर्विस. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक देयर इज अ पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है, सो एक काइंड ऑफ चैरिटी, मनी रेज कर रहे हो चैरिटी के लिए, उस केस में वी कैन यूज द इडियम yeoman सर्विस. ओके, सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? हेल्पफुल, यूजफुल और एफिशिएंट सर्विस. ओके, सो व्हाट इज द यूसेज? दे हैव डन yeoman सर्विस इन रेजिंग मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी रेज करना है तो दे have done the yeoman service. yeoman service जब भी हम यूज कर रहे हैं, हम किस वे में यूज करेंगे? जब हम हेल्पफुल है, यूजफुल और सफिशिएंट सर्विस कर रहे हैं, एफिशिएंट सर्विस कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज 41, दैट इज येलो बैलेट. ओके, सो येलो बैलेट जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे हैं, एक देयर इज अ बॉय और वो बहुत ज्यादा ना ऐसे स्केरी है. ओके, बहुत ज्यादा स्केयर्ड है, डर गया है किसी चीज के लिए. ओके, सो हम पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं. हम ये सोच सकते हैं कि जैसे उसने कोई गोस्ट देख लिया, कोई भूत देख लिया. ओके, वो येलो कलर का भूत था और वो भूत देख के वो डर गया. ओके, सो इन दैट केस वी कैन रिमेंबर द इडियम येलो बैलेट. सो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? कोवर्ड और इजीली स्केयर्ड, जो इजीली डर जाते हैं. इफ फॉर that person we can use yellow bellied. Okay, so usage is he is too scared to stand up for his rights. He is a yellow bellied fool. वो अपने rights के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता है. वो क्या है? He is a yellow bellied fool. जब भी yellow bellied fool जो है, अगर हम वैसा if we are using this particular idiom, what does it mean? It means the person who is easily scared. Okay, in that case we can use the idiom yellow bellied. देखो idioms and phrases जो हैं, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? ट्रिक्स बना के और इसको यूसेज में लाके. हम जो भी कुछ लर्न कर रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, आपने उसको कॉन्वर्सेशन में यूज करना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द idioms and phrases during conversation, you'll definitely become better in remembering the idioms and phrases. Okay, so our next idiom is yellow streak. येलो स्ट्रीक. सो येलो स्ट्रीक का मीनिंग क्या है? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़की है, येलो स्ट्रीक से एग्जामिन कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है? वो बहुत ज्यादा परेशान है. ओके, बहुत ज्यादा वीक ट्राइड है या फ्लॉ है, बहुत ज्यादा परेशान है. सो इन दैट केस वी कैन रिमेंबर द इडियम अ कोवर्डली और वीक ट्राइड और फ्लॉ इन अ पर्सन्स नेचर. एक कोवर्डली या वीक ट्राइड या फ्लॉ है एक पर्सन्स के नेचर में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? येलो स्ट्रीक. ओके, सो व्हाट इज द यूसेज? यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल, शो सम करेज, get rid of that yellow streak. Yellow streak क्या होता है? You are strong girl, कोई courage show करो, get rid of that yellow streak. Okay,
मतलब उसमें जो फ्लॉ है, कोई वीक पॉइंट है, उसको छोड़ के आप थोड़ा करेज को शो करो. इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम येलो स्ट्रिक. ओके, नेक्स्ट इज येलो प्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट, येलो प्रेस. देखो येलो प्रेस हम किस लिए यूज करते हैं? ऑब्वियसली फॉर द न्यूज़पेपर्स और द मीडिया और सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ओके, सो येलो प्रेस हम देख सकते हैं इस पिक्चर से एग्जामिन करके, जैसे ब्रेकिंग न्यूज है, कोई बार बार यहाँ पे आके इंटरव्यू ले रहे किसी सेलिब्रिटी का या ऐसा कुछ. ओके, सो येलो प्रेस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली येलो प्रेस का मीनिंग है पॉपुलर एंड सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स रादर देन द वेल रिसर्च्ड एंड सोबर वन. देखो येलो प्रेस वो न्यूज़पेपर होता है जिसने कोई रिसर्च नहीं किया है और बस पॉपुलर सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स, ऐसे ऊपर से न्यूज़पेपर्स है, उसमें उसने ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पब्लिश करवा दी और कोई भी वेल रिसर्च वर्क नहीं है. ओके, सो इन दैट केस वी कैन यूज येलो प्रेस. ओके, सो इसका यूसेज है, आई हैव गिवन यू टू यूसेजेस हियर. सो द फर्स्ट इज येलो प्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. जो येलो प्रेस है ये वन ऑफ द मेन रीजंस है किसके लिए? कन्फ्लिक्ट के लिए और वॉर्स के लिए. ओके, सो ट्रू जर्नलिज्म, सेकेंड इज ट्रू जर्नलिज्म स्टिल एग्जिस्ट, नॉट ऑल न्यूज मीडिया आर येलो प्रेस. अभी भी ट्रू जर्नलिज्म जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, जो सारे न्यूज मीडिया है वो सारे येलो प्रेस नहीं होते हैं. ओके, सो येलो प्रेस जब भी आएगा कोई भी पॉपुलर सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स है rather than the well researched and the sober one. Next is yellow. It is yell bloody. Please make correction. It is yell bloody murder. Okay, so what is the meaning of yell bloody murder? It means protest angrily or loudly or scream in fear. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई loudly protest कर रहा है, चिल्ला रहा है, scream कर रहा है. In that case we can use yell bloody murder. Yell चिल्लाना, yell bloody murder. So usage क्या होगा? Everyone is yelling bloody murder. There is something wrong in our neighborhood. सभी बहुत ज्यादा protest कर रहे हैं, गुस्से में protest कर रहे हैं या scream कर रहे हैं fear में. In that case we can use this yell bloody murder क्योंकि कुछ गलत है हमारे neighborhood में. ओके, नेक्स्ट इज टू हिट द जैकपॉट. इट्स वेरी इजी. जैकपॉट क्या होगा? किसी की जैसे बिग प्रॉफिट हो गया या बिग सक्सेस मिल गई. इन दैट केस वी कैन यूज टू हिट द जैकपॉट. ओके, सो इसका मीनिंग है टू हैव अ बिग सक्सेस और मेक अ बिग प्रॉफिट यूजुअली थ्रू लक. बिग सक्सेस कहीं पे बिग सक्सेस आपको मिल गई है या बिग प्रॉफिट हो गया है यूजुअली थ्रू लक. सो व्हाट इज द यूसेज? यूसेज इज ही सीम्स टू हैव हिट द जैकपॉट विद हिज न्यू इन्वेंशन. ओके, ऐसा लग रहा है उसको जैकपॉट उसने ही मतलब उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उसने ले लिया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उसको हो गया है विद दिस न्यू इन्वेंशन. इन दैट केस वी कैन यूज टू हिट द जैकपॉट. ओके, नेक्स्ट इज एक्स रेटेड. ओके, एक्स रेटेड को हमने कैसे याद रखना है? जैसे एक बच्चा है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है क्रॉस करके. सो एक्स रेटेड मीन्स विच इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन. जो भी चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज एक्स रेटेड. सो यूसेज इज द कंटेंट ऑफ द बुक इज एक्स रेटेड, हेंस कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. जो इस बुक का कंटेंट है वो एक्स रेटेड है, इसलिए हमने उसको बच्चों से दूर रखना है. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्स मार्क्स द स्पॉट. ओके, सो एक्स मार्क्स द स्पॉट. यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे आया है, जहां पे होना चाहिए वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे लोकेटेड है. सो एक्स मार्क्स द स्पॉट, बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट पे आया है. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? टू शो दैट समथिंग इज लोकेटेड एग्जैक्टली हियर. समथिंग, कोई ऐसी चीज जो एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेटेड है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्स मार्क्स द स्पॉट. Okay, so what is the usage? Usage is he pointed to the exact location on the map and told her that X marks the spot. उसने बिल्कुल exact location पे यहाँ पे point किया है मैप पे और यहाँ पे क्या बोला उसको? X marks the spot. It means ये बिल्कुल exact यही location है. ठीक है? Okay, our next idiom is to hit below the belt. Okay, to hit below the belt. Okay, to hit below the belt. इसका meaning यहाँ पे क्या है? To say something that is often too personal, usually irrelevant and always unfair. ओके, कोई ऐसी चीज बोलना जो बहुत ज्यादा पर्सनल है और जो सही नहीं है और जो अनफेयर है. इन दैट केस वी कैन यूज टू हिट बिलो द बेल्ट. ओके, इसका यूसेज क्या है? जैसे यहाँ पे कुछ पर्सनल है किसी का और हमने क्रॉस किया कि ऐसा नहीं हमें करना चाहिए. ओके, सो इन दैट केस टू रिमाइंड रिफॉर्म्ड एल्कोहलिक्स ऑफ द ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स इज टू हिट बिलो द बेल्ट. रिफॉर्म्ड एल्कोहलिक्स क्या होता है? कि जो पहले एल्कोहलिक था अब वो नहीं है, उसने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स को बिल्कुल छोड़ दिया है. इन दैट केस बिल्कुल एब्सटेन कर दिया है. ओके, सो वापस से उनको वही पुरानी बातें याद करवाना इज लाइक टू इज जस्ट मीन्स दैट इज टू हिट बिलो द बेल्ट. सो टू हिट बिलो द बेल्ट का मीनिंग क्या है? कि ऐसी चीजें बोलना, ऐसी पर्सनल चीजें बोलना जो बहुत इररेलेवेंट है या बहुत ज्यादा अनफेयर है. इन दैट केस वी कैन यूज टू हिट बिलो द बेल्ट.
Okay, next is throw a wrench into the works. Throw a wrench into the works. Now I am giving you the homework. What is the meaning of the wrench? ठीक है, आपने कमेंट करना है कि wrench का मीनिंग क्या होता है. Okay, so in this way we are also covering synonyms and antonyms as well. Okay, so throw a wrench into the works, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? To ruin a plan. किसी भी प्लान को चौपट करना, किसी भी प्लान को ruin करना. उस जैसे यहाँ पे प्लान है, ये कुछ बता रही है, यहाँ के बता रहा है भाई ऐसे करो वैसे करो, तो प्लान ही ruin कर दिया. Okay, so throw a wrench into the works means to ruin a plan. Usage is we were going to renew a lease but the landlord threw a wrench into the works by increasing the rent. जैसे हम जा रहे थे अपनी लीज को रिन्यू करवाने के लिए, लेकिन लैंडलॉर्ड ने बिल्कुल हमारा जो था हमारा प्लान ही चौपट कर दिया, उसने रेंट को ही बढ़ा दिया. ओके, सो थ्रो अ रेंच इनटू द वर्क्स, सिंपली इसका मीनिंग क्या है? किसी प्लान को चौपट करना. ओके, थ्रो अ रेंच इनटू द वर्क्स, प्लान को चौपट करना. नेक्स्ट इज वर्क योर फिंगर्स टू द बोन. वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, इस पिक्चर से एग्जामिन हम कर सकते हैं. जैसे इतना ज्यादा काम कर दिया ना, जैसे उसके जो फिंगर्स है बिल्कुल हड्डी के साथ ही बोन के साथ ही चिपक गई है. ठीक है, काम इतना ज्यादा कर दिया, इट मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है. सो हम एग्जामिन कर सकते हैं टू डू एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. ओके, टू डू एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. सो यूसेज इसका क्या है? शी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन टू प्रोवाइड अ होम एंड फूड फॉर 7 चिल्ड्रन. ओके, जैसे वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ये, ताकि ये होम या फूड अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कर पाए. सो वर्क योर फिंगर्स टू द बोन मीन्स टू डू एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. ओके, नेक्स्ट इडियम इज वेल ऑफ अ टाइम. ओके, सो वेल ऑफ अ टाइम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल ऑफ अ टाइम? इट मीन्स अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस. वेल ऑफ अ टाइम, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैमिली इंजॉय कर रही है. सो इन दैट केस वी कैन यूज वेल ऑफ अ टाइम. क्या मीनिंग है? वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस. सो व्हाट इज द यूसेज? वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम ऑन हॉलीडेज. ओके, वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम ऑन हॉलीडेज. इट मीन्स हमने बहुत ज्यादा इंजॉयबल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अपनी हॉलीडे से बहुत ज्यादा हमने इंजॉय किया. इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम वेल ऑफ अ टाइम. ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज वेट बिहाइंड द ईयर्स. वेट बिहाइंड द ईयर्स का मीनिंग क्या होता है? वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर. बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है और इमेच्योर है. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे सिंपल हम देख सकते हैं, लड़का है उसके कान में पानी चला गया और वो बहुत इमेच्योर सा बिहेव कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है. सो इन दैट केस वी कैन रिमेंबर द इडियम, द मीनिंग ऑफ द इडियम. सो वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मीनिंग क्या है? वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर. Okay, so what is the usage? Usage is he is a nice young fellow but a bit wet behind the ears. वो nice young fellow but वो बहुत ज़्यादा immature है. In that case we can use wet behind the ears. Okay, so next idiom is walking on broken glass. Walking on broken glass. Broken, अगर शीशा ही टूटा हुआ है, कैसे चलोगे? शीशा टूट गया तो हमें लग जाएगी, है ना? अगर लग जाएगी इट मीन्स किसी ने पनिशमेंट दी है, तभी हमें कोई बोल रहा है कि आप ब्रोकन ग्लास पे चलो. सो हम ये यहाँ से इसका एग्जामिन कर सकते हैं मीनिंग टू गेट पनिशमेंट. Okay, so walking on broken glass means to get punishment. So what does it mean? It means finding a job in the economy is like walking on broken glass. आज के इकोनॉमी में जॉब को फाइंड आउट करना कैसा है? जैसे किसी ने हमें कोई पनिशमेंट दे दी, जैसे इसने पनिशमेंट दे दी जो जॉब ढूंढ के आओ, छोटे बच्चों को दे दी, वो कैसे ढूंढेगा? ओके, सो इन दैट केस वी कैन रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द इडियम वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लास मीन्स टू गेट पनिशमेंट. ओके, नेक्स्ट इडियम इज वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द in the drought. Okay, wait for a raindrop in the drought. Obviously drought वाली कंडीशन है, बारिश हो नहीं रही है और एकदम से बारिश हो जाती है. ठीक है, हम वेट कर रहे हैं बारिश का. सो वी आर बेसिकली वेटिंग फॉर द होप. ओके, वी आर बेसिकली वेटिंग फॉर द होप. अगर हम होप का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? होपिंग फॉर समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन. ओके, इट मीन्स आप होप कर रहे हो, इन चीजों का होप कर रहे हो दैट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, जो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहे. इन दैट केस यू आर होपिंग फॉर समथिंग. और हमें ऐसा ही लाइफ में होना चाहिए, हमें होपफुल हमेशा रहना चाहिए. ठीक है, तभी होपफुल रहेंगे, तभी हम पॉजिटिव रख पाएंगे, खुद को मोटिवेट रख पाएंगे, एंड वी कैन डेफिनेटली गेट द सक्सेस. ओके, सो व्हाट इज द यूसेज? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इडियम विद द हेल्प ऑफ द यूसेज. फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग अ राइट जॉब फॉर मेनी पीपल दीज डेज इज लाइक वेटिंग फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट. आजकल के टाइम पे राइट जॉब को फाइंड आउट करना बहुत से लोगों के लिए ये क्या है कि आप रेन ड्रॉप के लिए वेट कर रहे हो ड्रॉट में. ओके, सो वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स होपिंग फॉर समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन. Next idiom is weigh one's word. Weigh one's word. So what does it mean? Weigh one's word. Weigh one's word means अपने जो आपके words हैं उसको
तोल तोल के बोलना, इट मीन्स बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स को प्रेजेंट करना। ओके, सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, बी केयरफुल टू व्हाट वन सेज, आपको जो भी बोलना है आपको केयरफुल तरीके से बोलना है। ओके, सो वे वंस वर्ड का मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई ओरेटर है या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको जो भी कुछ बोलना है, आपको फैक्ट्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें हैं आपको सिर्फ वही बताना, आपको कंसाइज रहना है, आपको करेक्टनेस पे बिलीव करना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन दैट, सो दैट इज कॉल्ड वे वंस वर्ड। ओके, सो यूसेज क्या है इसका, एन ओरेटर शुड ऑलवेज वे हिज वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन पब्लिक। जो ओरेटर होता है उसको हमेशा अपने वर्ड्स को केयरफुली प्रेजेंट करना चाहिए जब भी वो पब्लिक में बात कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड वे वंस वर्ड। Next is vultures are circling. Vultures are circling means something is in danger and its enemies are getting ready for the kill. Okay, कोई बंदा डेंजर में है और उसके एनिमीज आ रहे हैं उसको मारने के लिए, they are ready for the kill. Okay, in that case we can use vultures are circling. Okay, जैसे vultures आ जाते हैं ना, circling कर रहे होते हैं, it means they are waiting, they are getting ready for the kill. Usage is as the economy continues to struggle, the vultures are circling for many small businesses around the country. इकोनॉमी हमारी कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही है, vultures are circling, बहुत से जो ऐसे एनिमीज है वो स्मॉल बिजनेस को पूरा देख रहे हैं, हमने कहाँ पे किसी को खत्म करना है, क्या करना है। ओके, मोनोपोलाइजेशन पे बिलीव करना है। सो इन दैट केस वी कैन यूज इन सिंपल टर्म्स, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि vultures are circling का मतलब क्या होता है, समथिंग जो डेंजर में हो और उसके एनिमीज जो है दे आर गेटिंग रेडी फॉर द किल। ठीक है, that is called vultures are circling. Okay, next is volte-face. Volte-face means जैसे हम इसके एग्जामिन कर सकते हैं इस पिक्चर से कि कुछ इसको कुछ बोला करने के लिए, कुछ कर रही है, एकदम से ऐसे करके बैठ गई है। सो करना इसने कुछ और था, एकदम से सडन चेंज कर दिया इसने किसी और चीज में। ठीक है, सो वोल्टे बिल्कुल अजीब सा मुंह बना दिया। ओके, सो वोल्टे फेस का मीनिंग क्या होगा, मेक अ सडन एंड कंप्लीट चेंज इन योर स्टैंड और पोजीशन ओवर एन इशू। एक कंप्लीट चेंज अपनी पोजीशन में ले आना किसी इशू पे, दैट इज कॉल्ड वोल्टे फेस। ये चेंज ले आई, आगे पीछे देखने लगी। ओके, इन दैट केस वी कैन यूज वोल्टे फेस। द पॉलिसी वोल्टे फेस इज अनदर ब्लो टू थाईलैंड्स कैनिबस इंडस्ट्री। ओके, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिसी वोल्टे फेस मतलब जो सडन चेंज वो ले आए अपने पॉलिसीज में टू थाईलैंड की कैनिबस इंडस्ट्री के लिए। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ कैनिबस। आपको कैनिबस का मीनिंग बताना, इट्स वेरी इजी। इस तरह से you are able to find out, you are able to deal with the synonyms and antonyms as well. So you have to tell me the meaning of the cannabis. Okay, so यहाँ पे क्या है, जो पॉलिसी है वोल्टे फेस की, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एकदम से उनका स्टैंड ही चेंज हो गया। जो थाईलैंड की कैनिबस इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड ने चेंज कर दिया। सो द पॉलिसी वोल्टे फेस इज अनदर ब्लो टू थाईलैंड्स कैनिबस इंडस्ट्री। इन सिंपल टर्म्स वोल्टे फेस क्या होता है, बिल्कुल अपना स्टैंड चेंज कर देना, सडन कंप्लीट चेंज इन योर स्टैंड और पोजीशन ओवर एन इशू। इन दैट केस वी कैन यूज वोल्टे फेस। Okay, so next is voice in the wilderness. Okay, voice in the wilderness means someone who expresses an opinion on which no one believes. Voice in the wilderness का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो जिसपे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है। उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, इडियम वॉइस इन द वाइल्डनेस। सो वॉइस इन द वाइल्डनेस का मीनिंग क्या है, समवन हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन विच नो वन बिलीव्स। ओके, सो व्हाट इज द यूसेज, इसका यूसेज यहाँ पे क्या है, ही वॉज, यहाँ पे प्लीज मेक द करेक्शन, he was a voice in the wilderness but now people are finally listening to him. वो क्या है यहाँ पे, ये एक वॉइस है वाइल्डनेस में, बट मतलब वो पहले उस पर कोई बिलीव नहीं करता था, बट अब लोग उसकी बात सुन रहे हैं। ओके, इन दैट केस वी कैन यूज वॉइस इन द वाइल्डनेस। अब उसकी आवाज आ रही है, अब उसकी बात सुन रहे हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं वॉइस इन द वाइल्डनेस। ओके, नेक्स्ट इज वर्जन टेरिटरी। वर्जन टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये जो है एक ऐसी प्लेस है जिसको ऐसा लग रहा है अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ओके, इन दैट केस वी कैन यूज वर्जन टेरिटरी। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जन टेरिटरी, दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, जो पहले एक्सप्लोर नहीं की गई है। इन दैट केस वी कैन यूज वर्जन टेरिटरी। ओके, सो व्हाट इज द यूसेज इज देयर इज नो साइन ऑफ मैनकाइंड इन दैट वैली, इट्स अ वर्जन टेरिटरी। यहाँ पे कोई भी मैनकाइंड का साइन हमें इस वैली में नहीं दिख रहा है, ये क्या है, एक वर्जन टेरिटरी है। सो दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, उसे हम बोलेंगे वर्जन टेरिटरी।
Okay, so last idiom for today's class is vicious circle. Okay, so vicious circle का meaning क्या होता है? इसका meaning है sequence of events that makes each other worse. एक ऐसा sequence of events है जो एक दूसरे को worse कर रहे हैं, एक दूसरे को ही खराब कर रहे हैं. Okay, so usage is many people get trapped in a vicious circle of dieting and weight gain. वो जैसे ये जो है ये ट्रैप हो गया कि वो डाइट कर रहा है, फिर वेट गेन हो रहा है, फिर वेट गेन के बाद फिर डाइट कर रहा है, फिर डाइट के बाद दोबारा वेट गेन हो रहा है. ठीक है, सो बहुत से लोग जो हैं ट्रैप हो जाते हैं एक विशियस सर्कल में, एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जो एक दूसरे को वर्स करता है. कौन से इवेंट्स में? डाइटिंग और वेट गेन में. ठीक है, सो विशियस सर्कल मीन्स ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स ईच अदर वर्स. Okay, so that's it all about for the today's class. Thank you for listening.